ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ تفصیلی خبروں سے پہلے سرخیوں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ حکومت کورونا سے لڑنے کا لاہے عمل بنانے کے لیے کل جماعتی میٹنگ بلائے، سونیا گاندھی کی اپیل۔ تلنگانہ میں نائٹ کرفیو میں 15 مئی تک کر دی گئی توسیع، اہم احکامات جاری۔ جیلپلی میونسپل میں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے کووڈ آکسیجن تھراپی سنٹر کا قیام۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر مکہ مسجد میں حکومتی گائیڈ لائنز کے ساتھ ادا کی گئی جمعہ کی نماز۔ کورونا کے بحران سے عوام پریشان اور اوپر سے شہر میں جگہ جگہ کچرے کا انبار۔ حیدرآباد سٹی پولیس کے بھروسہ سنٹر کے 5 سال مکمل، آن لائن تقریب کی گئی منعقد۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوانے والوں کی تعداد 1 کروڑ سے زائد ہو گئی۔ اس وقت سعودی عرب میں 587 ویکسینیشن مراکز کام کر رہے ہیں۔ وہاں شہریوں اور مکینوں کو کووڈ-19 کی ویکسین مفت لگائی جا رہی ہے۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ویکسین لگانے کے لیے مزید مراکز بھی کھولے جا رہے ہیں۔ وزارت نے سعودی شہریوں اور تارکین وطن مکینوں پر زور دیا کہ وہ صحتی ایپ پر اپنا ناموں کا اندراج کریں تاکہ انہیں دستیاب ویکسینوں میں سے کسی ایک انجیکشن لگایا جا سکے۔ وزارت نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے ویکسین لگوائیں، بالخصوص جو افراد لوگوں کے ہجوم یا اجتماعات میں اپنا وقت گزارتے ہیں، انہیں ضرور ویکسین لگوانی چاہیے۔ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے کہا کہ کورونا وبا سے ملک کی صورتحال بے حد سنگین ہو گئی ہے اور حکومت کے لیے اس سے نمٹنا مشکل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالات پر قابو پانے کے لیے فوراً کل جماعتی اجلاس طلب کیا جانا چاہیے۔ سونیا گاندھی نے جمعہ کے روز یہاں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کانگریس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کورونا وبا کی ہولناک شکل کے مقابلے سسٹم ناکام ہو گیا ہے اور حکومت اس سے نمٹنے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال سنگین کے پیش نظر وبا سے نمٹنے کے لیے کل جماعتی میٹنگ بلانی چاہیے اور کورونا سے کیسے نجات ملے اس بارے میں سب کی رائے لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا وبا سے اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس سے اجتماعی طور پر ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ The government's own empowered groups and its National Task Force for COVID-19 had warned the Modi government that a second wave was imminent and urged it to plan and prepare for it. The Parliamentary Standing Committee on Health and opposition parties had raised serious concerns regarding our preparedness. Yet, earlier this year, the Prime Minister arrogantly boasted that he had defeated the pandemic and his party obediently felicitated him for his so-called success. Ignoring expert advice, جماعت اسلامی ہند عظیم تر حیدرآباد کی نگرانی میں چلائی جا رہی اسلامک سوشل سروس سوسائٹی نے ایک اہم اقدام کرتے ہوئے وادی ہدا پہاڑی شریف میں واقع جامعہ دارالہدا کے وسیع و عریض کیمپس میں مجوزہ مسلم جنرل اسپتال کے نو تعمیر شدہ عمارت نے 50 بستروں پر مشتمل کووڈ-19 کے متاثرین کو ابتدائی علاج کی سہولت فراہم کرنے آکسیجن تھراپی سنٹر کا آغاز کیا۔ امیر حلقہ تلنگانہ مولانا حامد محمد خان کی صدارت میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی، سپرنٹینڈنٹ عثمانیہ دواخانہ ڈاکٹر بی ناگیندر نے بحیثیت مہمان خصوصی یہ حیثیت سے شرکت کی۔ سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ اس وبا کے موقع پر NGOs کو سامنے آنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کووڈ آکسیجن تھراپی سنٹر کے قیام پر اس کے منتظمین کو مبارکباد دی۔ یہ سنٹر اگلے 3 دنوں تک آؤٹ پیشنٹ کی حیثیت سے کام کرے گا اور اس کے اگلے دن سے مریضوں کو یہاں داخلہ دیا جائے گا، جہاں بہت ہی واجبی اور کم فیس پر مریضوں کے علاج کی سہولت رہے گی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ صرف آئسولیشن کے ضرورت مندوں اور اس کے علاوہ
कोविड-19 से शदीद मुतासरा मरीजों के इलाज की यहाँ सहूलत नहीं रहेगी। सेक्रेटरी सोसाइटी ने इस बात की भी वजाहत की कि यह ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर कोविड-19 की संगीन लहर के मौके पर अवामुन्नास को सहूलत पहुँचाने की गर्ज से आर्जी तौर पर 3 माह के लिए क़याम किया जा रहा है, जिसे बादजा मुजव्विज़ा मुस्लिम जनरल अस्पताल वादी हुदा में ज़म कर दिया जाएगा। रेड्डी साहबा एजुकेशन मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का इस्तेमाल किया जाता है। आज मोहतरमा सबिता इंदिरा रेड्डी साहबा और जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के चेयरमैन यहाँ आए हैं। इसलिए आए हैं कि यहाँ वादी हुदा में जमात इस्लामी हिंद के तहत जो इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी काम करती है, उसका एक हॉस्पिटल पहले से तामीर शुदा था और ज़ेर तामीर था। अब उसको कोविड ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर यहाँ बनाया गया है और बिल्कुल इब्तदाई किस्म की तिब्बी सहूलत यहाँ कोविड के मरीज़ों के लिए फ़राहम की गई है और आज उसका इफ्तिताह यहाँ पर अमल में आया। थोड़ी देर में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी आने वाले हैं। वो जुम्मतुल विदा के प्रोग्राम के अंदर मसरूफ़ रहने से उनको ताख़ीर हो गई। इंशाअल्लाह वो भी आएंगे, वो भी आपको इंशाअल्लाह मुखातिब करेंगे। इस पर लोगों को तमाम सहूलतें इंशाअल्लाह हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे और हमारे कारकुनान भी उनकी खिदमत के अंदर लगे हुए रहेंगे और उनकी जो नफ्सियाती ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा करेंगे और उसकी काउंसलिंग का भी काम यहाँ पर किया जाएगा। और तकरीबन 40 का स्टाफ अब तक हमने यहाँ पर अपॉइंट किया है, जो यहाँ पर रहेंगे। नर्सिंग स्टाफ भी है और पैरामेडिकल भी है, डॉक्टर्स भी हैं और डेडिकेटेड डॉक्टर्स भी यहाँ पर रात व दिन यहाँ पर इंशाअल्लाह रहेंगे और 2 एम्बुलेंस भी यहाँ पर तैयार रहेंगे। अगर किसी की हालत ख़राब हो जाए तो आगे अवेसी हॉस्पिटल या असरा हॉस्पिटल या किसी और दवाखाने को शिफ्ट करने के लिए। हम तो उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ जो भी आएँ वो सेहत याब होकर जाएँ, उनको किसी और जगह जाने की नौबत और ज़रूरत पेश ना आए। इसी अज़्म के साथ हम यहाँ पर ये सेंटर ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर क़ायम करे हैं और आप तमाम का बेहद शुक्रिया और ख़ास तौर पर मैडम सबिता इंदिरा रेड्डी साहबा का भी और तमाम जितने कॉरपोरेटर्स और चेयरमैन यहाँ आए हैं उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और प्रेस के दोस्तों का और पुलिस का भी हम शुक्रगुज़ार हैं। शहर हैदराबाद में आज जुम्मतुल विदा के मौके पर मक्का मस्जिद में तमाम तर हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करते हुए पुलिस की सख्त पहरादारी में नमाज जुमा अदा की गई। इस मौके पर मौलाना रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद ने मीडिया से बात करते हुए मुसलमानों से अपील की कि वो अपने घरों में इबादत का सिलसिला जारी रखे, लैलतुल क़द्र और ताक रातों में अपना वक्त इबादतों में गुजारे, चूँकि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अय्याम गुजर रहा है। उन्होंने इसको गनीमत जानते हुए ज़िंदगियों में बड़ी तब्दीली लाने की गुजारिश की। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही व हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। आज तारीख़ी मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज़ अदा की गई है, जो रमज़ान करीम का आखिरी जुमा था। जुम्मतुल वदा खुशू व खुजू के साथ और हुकूमत के जो गाइड्स बताए गए हैं उसी के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ रखते हुए मास्क की तरफ अवामुन्नास को रग़बत दिलाते हुए यहाँ पर दाखिला दिया गया है मक्का मस्जिद में और बहुत ही खुशू के साथ पुरसुकून अंदाज से जुम्मतुल वदा अदा की गई है। और इंशाअल्लाह ताला ये जुमा आखिरी जुमा है रमज़ान मुबारक का। जैसा कि आप जानते हैं कि ये तीसरा आशरा चल रहा है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये जुमा दोज़ख से नजात का बायस है। ये तो मैं अवामुन्नास से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि इस आशरे को गनीमत समझें और इस आशरे में खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने शब क़द्र को इसमें मख्फ़ी रखा है, तो ताख़ रातों में इसको तलाश करने का है हमको। तो आज यकीनन ताख़ रात है, आज की रात ताख़ रात है। तो मैं अपील करता हूँ तमाम मुसलमानों से कि इस आशरा आखिरा को गनीमत समझें और ताख़ रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश का अहतमाम करें।
اللہ کی خوب عبادت کریں اور ذکر کریں. اور یہ جو کورونا وائرس کی وبا چل رہی ہے ساری دنیا میں، لوگ پریشان حال ہیں اس مرض سے، اس بیماری سے. اس سے نجات کے لیے دعا کریں، اور جتنے بھی لوگ اس بیماری سے فوت ہوئے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے بھی دعا کریں. اور جتنے بیمار ہیں ان کی سلامتی اور حفاظت کے لیے بھی دعا کریں. اور جتنے محفوظ ہیں تاحیات ان کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی دعا کریں. میں اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرتا ہوں اس موقع پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام رمضان کے عبادتوں کو قبول فرمائے. ہم سب کے ذکر و اذکار کو اور تراویح کو اور تسابیح کو اللہ قبول فرمائے. اور خصوصاً اس عشرہ اخیرہ میں ہم سب کو کما حقہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرمائے. اور اس کورونا وائرس کے مرض کو جلد سے جلد اس دنیا سے خاتمہ فرمائے. ساری انسانیت کی، سارے مسلمانوں کی، سارے عالم اسلام کے رہنے والوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور میں مزید آخر میں آپ کو پھر یہ بتاؤں گا کہ اس بیماری کو جو چل رہی ہے مرض کورونا وائرس، اس سے لاپرواہی مت کریں. آپ لوگ ماسک کا کثرت سے استعمال کریں، اور سوشل ڈسٹینسنگ، اپنے تمام معاملات میں سوشل ڈسٹینسنگ کو ملحوظ رکھیں. اور خوب عبادت کرتے ہوئے اس بیماری سے نجات کے لیے دعا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. GHMC کی لاپرواہی مسلسل جاری ہے. شہر میں بھاری تعداد میں مچھروں کی گشت بھی جاری ہے. دوسری طرف کچرے کے انبار. آخر حکومت کیوں بلدیہ انتظامیہ کو توجہ دلانے میں قاصر ہے؟ ہمارے نمائندے آصف کے مطابق وٹے پلی کے علاقے اظہر ہوٹل کے پاس یہ کچرا اپنی جگہ سے سڑک کے دوسرے کنارے جا پہنچنے پر ہے، لیکن بلدیہ انتظامیہ لاپتہ ہے. مقامی لوگ اور راستے سے گزرنے والے اس کچرے کے راستے سے گزر رہے ہیں، جبکہ کورونا بحران نے پورے ملک کو تباہ کر دیا ہے. اب تو حکومت کو چاہیے کہ بہتر اقدامات کرے تاکہ ریاست کی عوام بیماریوں سے محفوظ رہیں. برسر اقتدار TRS پارٹی نے کھمم میونسپل کارپوریشن KMC کے لیے میئر اور ڈپٹی میئر کے ناموں کا اعلان کیا. وزیر وملا پرشانت ریڈی P نیرجا کو میئر کی امیدوار اور فاطمہ زہرا کو ڈپٹی میئر کی امیدوار کے طور پر پیش کر دیا. معلوم ہوا کہ حالیہ منعقدہ کھمم میونسپل کارپوریشن انتخابات نے P نیرجا اور فاطمہ بلا ترتیب 26 اور 37ویں وارڈ سے کامیابی حاصل کر چکی ہے. TRS پارٹی نے کھمم بلدیاتی انتخابات کا کام وزیر پرشانت ریڈی کو سونپا ہے. جمعہ کو وزیر نے TRS کارپوریٹرز کے ساتھ میٹنگ کی اور میئر اور ڈپٹی میئر کے ناموں کا اعلان کیا. میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کارپوریٹرز کی حلف برداری کی تقریب کے فوراً بعد ہوگا. شالیبنڈا پولیس اسٹیشن حدود لال دروازہ چوراہے پر نائٹ کرفیو کے آغاز سے متحرکانہ طور پر پولیس کی چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے. اسی ضمن میں گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کرنے والوں پر اب تک پولیس چالان اور غصہ کرتی دیکھی جا رہی تھی. کل رات شالیبنڈا پولیس بلا وجہ سڑکوں پر پھرنے والے نوجوانوں کو اٹھک بیٹھک کرواتے ہوئے دیکھی گئی. حیدرآباد سٹی پولیس کے بھروسہ سینٹر نے اپنے ادارے کے 5 سال تکمیل کیے. اس موقع پر ایک تقریب منعقد کی گئی. یہ تقریب زوم ایپ اور فیس بک لائیو کے ذریعے ٹیلی کاسٹ کی گئی. اس پروگرام کی صدارت کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے کی. اس موقع پر پولیس کے اعلیٰ افسران و دیگر نے شرکت کی. اس موقع پر کمشنر پولیس حیدرآباد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھروسہ سینٹر حیدرآباد کی ایک لازمی ضرورت بن گیا ہے اور پچھلے 5 سالوں میں 10,000 متاثرین کی مدد کی گئی. اسی کی روشنی میں انہوں نے انکشاف کیا کہ حکومت نے حیدرآباد سٹی پولیس کے لیے ایک اور بھروسہ سینٹر اور 13 نئے خاندانی مشاورت مراکز کی منظوری دے دی ہے. ہیپی برتھ ڈے ٹو بھروسہ.
and happy birthday to all of you, to all of us. ఈ రోజు ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కి 5 years anniversary, అండ్ ఈ 5 years ఎంత షార్ట్ టైంలో ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ కి పేరు, మంచి పేరు, గుడ్ నేమ్ ఒకటే స్టేట్లో కాదు ఎంటైర్ కంట్రీలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగే కనపడుతుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ all the officers associated, additional DG Women Safety Swati Lakra, additional CP Crime Shikha Goyal, Joint CP Crime Avinash Mohanty, additional DCP Sirisa, and all of you those who are connected virtually through the web cameras, Mamta Raghuveer, and all of you sitting in front of me and those who are participating. ఈ క్రెడిట్ మీ అందరికీ పోతుంది. ఒక స్మాల్ టైంలో కోఆర్డినేటెడ్ ఎఫర్ట్ ద్వారా ఒక విజన్, ఒక గోల్కి ఎట్లా అచీవ్ చేయాలి, ఇది ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఉంది భరోసా సెంటర్. క్రైమ్ అండ్ సేఫ్టీ ఆఫ్ విమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ గురించి ఎంత చెప్పాలి, ఇది తక్కువ. ఒక అర్లీ ఏజ్లో కొన్ని సినిమాస్కి ఇంపాక్ట్ చాలా పర్మనెంట్గా ఉంది. ఐ థింక్ 1972-73లో నేను ఒక సినిమా చూసాము, చాలా ఫేమస్ సినిమా ఉంది ఇంటర్నేషనల్లీ, గాడ్ ఫాదర్. గాడ్ ఫాదర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఆల్ టైమ్ గ్రేట్ మూవీ. ఈ గాడ్ ఫాదర్ మూవీలో ఇటాలియన్ మాఫియా గురించి చాలా డిస్కషన్ ఉంది. ఇటాలియన్ మాఫియా న్యూయార్క్లో, అమెరికాలో, హౌ దే వర్ కమిటింగ్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్స్, వెరీ బిగ్ క్రైమ్. అండ్ ఈ మూవీలో ఒక మెయిన్ విలన్, మెయిన్ మాఫియా who was called Godfather. जिला संगारेड्डी के जहराबाद डिवीज़न के मोगड़मपल्ली मंडल माड़गी गांव के गुरबा व मसाकिन और मुस्तहिकीन और हर मजहब के लोगों में 250 रमज़ान राशन किट्स की तकसीम सरपंच नुमाइंदा अरशदुज़्ज़मा के हाथों अमल में आई। इस मौके पर मोहम्मद हादी पटेल, मोहम्मद अजमल पटेल, मोहम्मद अकमल पटेल, मोहम्मद जुबैर पटेल, मोहम्मद राशिद पटेल व दीगर मौजूद थे। సర్వీస్ టు మ్యాన్ ఈజ్ సర్వీస్ టు గాడ్. మానవ సేవవే మాధవ సేవ. ఈరోజు మాడిగి గ్రామంలో ప్రత్యేకంగా కరోనా వైరస్ మహమ్మారితో చికిత్స పడుతూ జనాలు మొత్తం పరేషాన్ అయి దారోదిక అయిపోయినారు. అదేవిధంగా పోయిన వర్షం కూడా మనము నిత్య అవసరమైన నెలకు సరిపడిన పేద కుటుంబాలకు పంపిణీ చేస్తున్నాము. అనేక కుటుంబాలకు ముఖ్యమంటే మన ఊర్లో వర్గాలు మతాలు లేకుండా అన్ని వర్గాలకు మతాలకు చెందినట్ల పేద కుటుంబాలకు మాత్రమే ఈ పంపిణీ చేస్తున్నాము. మన 250 కుటుంబాలకు సరి అయినది అట్లా మేము ఈరోజు పంపిణీ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా మా ప్రజల నుంచి కోరిక చేస్తున్నాము, దాతలు ముందుకు రావాలి, అందరూ కలిసి ఇస్తే ఇక ఎవరు కూడా బాధపడట్లా చూసుకోవాలని మనవి చేస్తున్నాము. जेलपल्ली म्यूनसिपल में वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी रुकन असम्बली हल्का महेश्वरम ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 150 चेक्स की तकसीम अमल में लाई।
इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आवाम से अपील की कि वो बगैर मास्क के घरों से बाहर ना निकले और तमाम हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करें, चूँकि मौजूदा हालात में बड़ी तादाद में कोरोना मुतासरीन पाए जा रहे हैं, जिस बिना पर आज ही हुकूमत तेलंगाना ने भी नाइट कर्फ्यू में तोसी की है। इस मौके पर वज़ीर तालीम के हमरा जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अहमद बिन अब्दुल्ला सादी व दीगर मजलिसी और TRS लीडरान मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में कोरोना की वबा जारी है। ये तशवीशनाक बात है कि संगीन सतह पर हर रोज़ मुस्बित मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इस तनाजुर में तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। इससे पहले लगाए गए रात के कर्फ्यू में मजीद एक हफ्ते की तोसी कर दी गई थी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू 15 मई तक जारी रहेगा। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि कोविड-19 के मौजूदा कवायद 15 मई तक नाफिजुल अमल रहेंगे, ताहम हंगामी खिदमात मुस्तस्ना है। दर-ए-इस्ना हुकूमत ने शादियों के लिए 100 मेहमानों और आखिरी रसूमात के लिए 20 लोगों की इजाज़त दी है। कितने दिन ज्यादा इतने रोड पे बताना चाह रहे हैं, पूरा होटल खोले नहीं यार। टाइम क्या हो रहा है? कर्फ्यू का टाइम क्या है? कैसा लगा गाड़ी? ये बबलू है गलत जो रहे हैं बिना मास्क के गलत। टाइम क्या हो रहा है? नागार्जुना सागर के नवमुंतखब रुकन असम्बली एन भगत कुमार ने आज रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने भगत कुमार की शाल पोशी करते हुए तोहफा पेश किया और ख्वाहिश जाहिर की कि नागार्जुना सागर हल्के की तरक्की और अवामी मसाइल को हल करने के लिए मेहनत करें। उन्होंने नवमुंतखब रुकन असम्बली को याद दहानी करवाते हुए कहा कि TRS पार्टी एक सेकुलर पार्टी है जो रियासत के तमाम मज़ाहिब के लोगों की तरक्की के लिए एकसा खिदमत अंजाम देती है। वज़ीर मौसूफ ने इन भगत कुमार को मुबारकबाद पेश करते हुए मुस्तक़बिल के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भगत ने कहा कि वज़ीर दाखिला ने ज़मनी इंतखाबात के सिलसिले में तकरीबन 1 महीना नागार्जुना सागर हल्के में क़याम करते हुए काफ़ी मेहनत की, बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियतों के हर मोहल्ले में शिरकत करके इन्हें TRS उम्मीदवार के हक़ में वोट देने की अपील की, जिस पर मुसलमानों की अक्सरियत ने पार्टी के हक़ में वोट देते हुए इन्हें भारी कामयाबी दिलाई। भगत ने वज़ीर दाखिला की मेहनत और जुस्तजू का एतराफ़ करते हुए कहा कि इनकी कामयाबी में महमूद अली का अहम रोल रहा। आखिर में और एक बार सुर्खियों पे नजर डालते हैं। हुकूमत कोरोना से लड़ने का लाहे अमल बनाने के लिए कुल जमाती मीटिंग बुलाए, सोनिया गांधी की अपील। तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू में 15 मई तक कर दी गई तोसी, अहम अहकामात जारी। जलपल्ली म्यूनसिपल में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से कोविड ऑक्सीजन थेरापी सेंटर का क़याम। जुम्मतुल विदा के मौके पर मक्का मस्जिद में हुकूमती गाइडलाइंस के साथ अदा की गई जुमा की नमाज। कोरोना के बहरान से आवाम परेशान और ऊपर से शहर में जगह जगह कचरे का अंबार। हैदराबाद सिटी पुलिस के भरोसा सेंटर के 5 साल मुकम्मल, ऑनलाइन तकरीब की गई मुनक्किद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए।
हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई ज़ेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, जबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें 0405518812 रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानीहार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 040244460057।